السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ حزب اللہ کا اسرائیلی ڈیوڈ بیس اور ہوائی اڈے پر میزائلوں سے حملہ، 100 سے زائد میزائل داغے گئے۔ ایران میں کوئلے کی کان میں میتھین گیس کے دھماکے سے کم 28 افراد ہلاک، 17 زخمی، 24 لاپتہ۔ جموں کشمیر کے الیکشن میں سیاسی درجہ حرارت میں تیزی، جموں کشمیر کے نوشہرہ میں امت شاہ نے انتخابی ریالی سے کانگریس اور این سی کو کیا چیلنج۔ ٹرن آؤٹ ہماری توقع کے مطابق نہیں تھا، موجودہ حکومت کو فکر کرنے کی ضرورت۔ جموں کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں ووٹروں کے ٹرن آؤٹ پر عمر عبداللہ کا رد عمل۔ کانگریس، این سی اور پی ڈی پی کے تینوں خاندانوں نے کرپشن سے خوبصورت ریاست کو کر دیا تھا برباد۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے جموں میں جلسے عام سے کیا خطاب۔ استعفے پر کیجریوال نے کہا، بدنامی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اگر میں ایماندار ہوں تو ووٹ دو۔ بھاگوت سے پوچھا، 75 سال پر مودی کے لیے ریٹائرمنٹ کیوں نہیں؟ اور ایم پی میں آرمی ٹرین کو پٹری سے اتارنے کی سازش، ڈیٹونیٹر بچھائے گئے۔ کانپور میں دوبارہ ٹریک پر ملا سلنڈر۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش خبروں کی تفصیل۔ لبنانی حزب اللہ نے حیفا کے جنوب مشرق میں واقع رباط ڈیوڈ بیس پر فادی 1 اور فادی 2 میزائلوں سے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لبنان پر بار بار اسرائیلی حملوں کا جواب ہے۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کی رات سے اتوار تک حزب اللہ نے بالائی الجلیل اور حیفا کے جنوب کی طرف سے 100 سے زائد میزائل داغے۔ مزید کہا گیا ہے کہ حیفا کے جنوب میں یوکو نام میں سائرن بج رہے تھے اور میزائلوں کا بنیادی ہدف رامات ڈیوڈ بیس تھا۔ حزب اللہ کے میزائلوں نے انولا شہر اور مرچ بن عامر میں رامات ڈیوڈ بیس کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنانی سرزمین سے لگ بھگ 10 راکٹ لانچروں کی نگرانی کی اور لبنان کی سرزمین سے داغے گئے زیادہ تر راکٹوں کو روک دیا۔ جمعہ کے روز اسرائیل نے ایک بار پھر جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے میں بمباری کر کے حزب اللہ کی ایلیٹ یونٹ رضوان فورس کی پوری کمان کو شہید کر دیا تھا۔ لبنان کی وزارت صحت نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ جمعہ کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے اور تقریباً 70 زخمی ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد بین الاقوامی انتباہات ایک جامع جنگ شروع ہونے اور تنازع کے پھیلنے کے خطرات کے بارے میں بڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی حکومت نے اپنے الرٹ کی سطح کو بڑھا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس نے اپنا ہفتہ وار اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اجلاس آج اتوار کو ہونا تھا۔ ہوم فرنٹ کمانڈ نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اس نے لبنان کے ساتھ سرحد کے قریب ملک کے شمالی علاقوں میں تمام اسکولوں کو بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ حزب اللہ نے آج صبح میزائلوں کی کھیپ شروع کر دی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسکولوں اور دیگر تعلیمی ادارے کل پیر کی شام 6 بجے تک بند رہیں گے۔ اسرائیلی وزارت صحت نے شمال کے اسپتالوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ اپنے آپریشنز کو راکٹ اور میزائل فائر سے اضافی تحفظ کے ساتھ سہولیت میں منتقل کر دیں۔ وزارت صحت کے مطابق حیفا میں اسپتال مریضوں کو اپنی محفوظ سرزمین سہولت میں منتقل کرے گا۔
सरकारी टेलीविजन ने इतवार को बताया कि ईरान के जनूबी सूबे खरासा में कोयले की कान में मीथेन गैस के धमाके से कम 28 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए, जबकि 24 अफराद बदस्तूर लापता हैं। सरकारी टीवी ने बताया कि हादसा मदनजू कंपनी के ज़ेरे इंतजाम कान के 2 ब्लॉक्स में मीथेन गैस के धमाके से हुआ। धमाके के वक्त ब्लॉक्स में 59 कारकुन मौजूद थे। सरकारी टीवी ने ईरान के हिलाल अहमर के सरबराह का हवाला देते हुए कहा है कि 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और 24 अफराद बदस्तूर लापता बताए गए। सरकारी मीडिया ने बताया कि धमाका हफ्ते को मुकामी वक्त पर रात 9 बजे हुआ। सदर मसूद पेश ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने टेलीविजन पर तबसरे में कहा है कि मैंने वज़रा से बात की है और हम हादसे की मज़ीद तफ्तीश करने की पूरी कोशिश करेंगे। साबिक अमेरिकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप सिक्के के इजरा का ऐलान किया, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की है। साबिक सदर ने अपने ट्रुथ सोशल और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए एक वीडियो क्लिप पोस्ट की, जिसमें कहा गया है कि आज मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए एक शानदार चीज है जो हम आपके सामने पेश करते हैं। ये सरकारी सिक्का है जो मैंने डिजाइन किया था। इसे अमेरिका की अजमत को जाहिर करने के लिए बड़े फख्र से बनाया गया था। इन्होंने मजीद कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जे ट्रंप सिल्वर मेडल बुध 25 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले पहले एडिशन से दस्तयाब होगा। इन्होंने कहा है कि हर सिक्के के साथ एक असली सर्टिफिकेट होगा जिस पर मेरे दस्तखत होंगे, इस बात का सबूत के तौर पर कि आपने ट्रंप का असली सिक्का खरीदा है। साबिक सदर ने वीडियो क्लिप का इख्तिताम एक मज़ाहिया अंदाज में करते हुए कहा है कि इन्होंने मेरे बहुत खूबसूरत चेहरे वाले बहुत से सिक्के देखे। इन्होंने ये कहते हुए जोर दिया कि मैं एक बहुत खूबसूरत इंसान हूं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी दीगर क्वाड रहनुमाओं के साथ 21 सितंबर को डेलावेयर में आर्चिमर एकेडमी फॉर क्वाड लीडर्स समिट के लिए जमा हुए। क्वाड रहनुमाओं में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने भी फैमिली की तस्वीर खिंचाई। मीडिया की जानिब से जब क्वाड के मुस्तकबिल के इजलास के बारे में इस्तफसार किया गया तो बाइडन ने कहा कि अगला इजलास नवंबर के बाद मुनक्किद होगा। क्वाड बहर हिंद व बहरुल काहिल के खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के लिए हम ख्याल ममालिक के एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है। इस साल का क्वाड सरबराह इजलास सदर बाइडन के आबाई शहर डेलावेयर में मुनक्किद होने वाला रहनुमाओं का 6वां इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जो बाइडन और खातून अव्वल जल बाइडन को तोहफे पेश किए जो भारत के अमीर थकाफती विरसे की अक्कासी करते हैं। सदर बाइडन को चांदी के हाथ से बना एक कदीम ट्रेन मॉडल पेश किया गया जिस पर मरकजी बोगी के अतराफ में दिल्ली डेलावेयर लिखा हुआ था। खातून अव्वल जल बाइडन को एक पेचीदा डिजाइन करदा मॉचिस बॉक्स में पेशमियान शॉल तोहफे में दी गई। काबिल जिक्र बात यह है कि चांदी के हाथ से ट्रेन मॉडल एक नायाब और गैर मामूली है और इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने महारत से तैयार किया है। चांदी की दस्तकारी में अपने अमीर विरसे के लिए ये मशहूर है। 92.5% चांदी से बना ये मॉडल हिंदुस्तानी धात के काम करने वाले फनकारों की चोटी को जाहिर करता है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को जम्मू कश्मीर के नौशहरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा है कि मैं फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि अस्करियत पसंदी के खात्मे तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। शाह ने यह भी कहा है कि अगर बात करनी है तो पाकिस्तान से नहीं, नौशहरा के शेरों से बात करेंगे। इसके अलावा शाह ने यह भी कहा है कि कश्मीर में अब सिर्फ तिरंगा लहराएगा। बता दें कि नौशहरा में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंद्र रैना की हिमायत में एक इंतखाबी रैली निकाली गई, जिसमें शाह ने शिरकत करते हुए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू के पहाड़ियों में अस्करियत पसंदी के दोबारा सर उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये मोदी हुकूमत है और हम अस्करियत पसंदी को जमीन के अंदर दफन कर देंगे। किसी अस्करियत पसंद या पथराव करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी आपको यकीन दिलाती है कि जम्मू कश्मीर में कोई अस्करियत पसंद आजाद नहीं घूमेगा। हिंदू है, मुसलमान है, मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला, उसमें आपके नेता रैना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। ऐसे पीछे पड़ गया था कि जैसे ये काम उसके घर का हो। 2 बार तो मैंने बेचारे को डांट भी दिया, तो उसने कहा साहब आप पहाड़ियों की दिक्कत को नहीं जानते हो। और रैना ने जब पहाड़ियों का आरक्षण दिलाया तब मुझे मालूम पड़ा, कल ही मैं घूम कर आया हूं 6 जगह पहाड़ी क्षेत्रों में, कि यहां कितना कठिनाई है। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, के बुरनाई में एक जलसाम से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में तब्दीली की लहर का भी जिक्र किया और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के साथ बीजेपी के गहरे ताल्लुक पर भी जोर दिया। इसके अलावा इन्होंने दावा किया कि मोदी की क़यादत में अस्करियत पसंद के वाक़यात रुक गए हैं। नड्डा ने कहा कि जम्मू और बीजेपी का बहुत गहरा रिश्ता है, जिन्हें हम शेरे डगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नाम से जानते हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा भारतीय जनसंघ में सदर के तौर पर काम करने वाले शख्स थे। बीजेपी का जम्मू के साथ इतना गहरा रिश्ता है। इन्होंने मजीद कहा है कि मोदी तब्दीली की लहर लाए हैं। बीजेपी का जम्मू कश्मीर के सरजमीन से गहरा ताल्लुक है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता। हुक्काम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक और तसादुम हुआ। जिले पुलिस किश्तवाड़ ने ट्वीट किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और छुपे अस्करियत पसंदों के दरमियान डनाटधर जंगलाती इलाके के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों की मौजूदगी से मुताल्लिक मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसमें 13 सितंबर को किश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों के साथ बंदूक की लड़ाई में 2 फौजियों ने अपनी जान गंवाई थी और 2 जख्मी हुए थे।
JKNC के सदर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद की है। खासतौर पर आर्टिकल 370 के दौर में होने वाली पेशरफ्त के मुकाबले में इन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की का गुजरात की तरक्की से मुआवजा करने का हवाला दिया। इस बात को उजागर करते हुए इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 370 के निफाज के दौरान नुमाया पेशरफ्त की है। JKNC के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में 2 रियासतों का मुआवजा किया तो एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर गुजरात से बेहतर ऊपर है। यहाँ की हुकूमतों ने ये किया और जब आर्टिकल 370 नाफिज था हमने ये किया, लेकिन इन सालों में इन्होंने हमें क्या तरक्की दी? क्या बेरोजगारी कम हुई? क्या इन्होंने अस्करियत पसंदी को खत्म किया? आप लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, जिससे 370 को निकाला है उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ आप लोग डायलॉग चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं जब तक तेरी खत्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान क्या करता है, ये क्या करते हैं। चीन से बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा। यहां क्यों नहीं बात कर सकते? क्या वजह? इसी तरीके से तो इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूं, वो जरा याद करें, जब कांग्रेस के नेता, ऑपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद ने 2 रियासतों को कंपेयर किया राज्यसभा में, आंकड़े दिए, उन आंकड़ों में उन्होंने दिखाया जम्मू कश्मीर आसमान की तरफ है और गुजरात उससे बहुत नीचे है। क्या वो गलत है? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? जब यहां की हुकूमतों ने ये किया, 370 में किया और हमने तरक्की की। क्या तरक्की दी इनने हमें इतने सालों में? कितने नौकर लगाए, महंगाई को कम किया, बेकारी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, यहां लोगों के लिए अच्छी बात की। कितने बच्चे हमारे जेलों में बैठे सड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में वोटरों के टर्नआउट पर रद्दमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि टर्नआउट हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं था। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां 2014 के मुकाबले में वोटर टर्नआउट कम था। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। ताहम इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने वोट दिया। जितना हम उम्मीद कर रहे थे, अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े। मैं अगर नूराबाद की बात करूं, नूराबाद में जहां 2014 में 80% वोट पड़े थे, इस बार कोई 20% कम पोलिंग हुई है वहां पे। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में, जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीजों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। लेकिन तब भी जितने लोगों ने वोट डाले हम उसका शुक्रगुजार हैं। और जहां तक रिपोर्ट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही। अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज में नजर आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नजर आए और नतीजों में तब्दील हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बीएसएफ ने बताया कि बरामद किए गए हथियारों में
एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल और मैगजीन के 4 और 9 mm राउंड शामिल हैं। BSF ने कहा है कि दरमियानी रात में चौकस BSF के दस्तों ने एक मशकूक हरकत देखी, जिसमें RS-पुरा सरहदी इलाके में एक दरअंदाजी को BSF के बाड़ के करीब आते देखा गया। चौकस फौजियों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सवा 11 से 11:20 के बीच में जो फेंस और बॉर्डर के बीच में पाकिस्तान की तरफ जो एक धान का खेत है आगे, उसके अंदर कुछ क्रॉलिंग की हरकत, जो हमारा ड्यूटी पॉइंट है बॉर्डर के साथ साथ सब लगे हुए हैं, तो वो अलर्ट थे। उन्होंने देखा कि कुछ चावल के खेत में हरकत हो रही है, तो इमीडिएटली अलर्ट जो ट्रूप्स थे उसमें फायर किया गया, और फायर करने के बाद में जो हरकत है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि चावल का खेत करीब 2.5-3 फीट ऊंची फसल है उसके अंदर, और लेकिन पूरा एरिया उसको निगरानी में रखा गया। और सुबह जब सर्च किया तो एक बैग मिला जिसके अंदर हथियार और एम्यूनिशन बरामद हुआ, जिसमें एक AK-47 राइफल है, 2 मैगजीन करीब 17 राउंड हैं उसके अंदर, और इसी प्रकार से 2 पिस्टल हैं, दोनों फॉरेन मेड हैं, और उसमें भी 4 मैगजीन और करीब 20 राउंड मिले। तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेशन बिड की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको कि अलर्ट ट्रूप्स ने मुस्तैदी से उसको नाकाम किया और बहुत अच्छी रिकवरी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जिले इलेक्शन ऑफिसर सलोनी रॉय ने 22 सितंबर के रोज कहा है कि जिले के 4 असेंबली हलकों में 36 सर्विलेंस टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही इजाफी 36 फ्लाइंग स्क्वाड्स को मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक चेकिंग करने का काम सौंपा गया है। इन्होंने मजीद कहा है कि ये टीमें गाड़ियों और पैदल चलने वालों का सख्ती से मुआयना कर रही हैं और तकरीबन 55 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इस जामे निगरानी के नेटवर्क का मकसद मुनसिफाना और लालच से पाक इंतखाबी अमल मुकम्मल करना है। हमारी जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, जो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम 3 लोकेशंस को कवर कर रही हैं, तो हमारी तीनों शिफ्ट्स को मिला के लगभग 12 टीम्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी हुई हैं। तो ज़िले में 36 टीम्स लगी हुई हैं और 36 ही हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स भी लगी हुई हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड ने कहा है कि जहां तक हमारी शुमाली सरहदों पर हमारी दिफाई तैयारियों का ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूं कि यहां लद्दाख में हमारे पास LAC और LOC दोनों हैं। हमारे 2 दुश्मन हैं और उनके साथ जंगें हुई हैं। PM मोदी कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपना दिफा करेंगे। जब से ये हुकूमत आई है, उनका ध्यान सरहदों पर तैयारियों पर चला गया है और ये इस फिजाई हमले से जाहिर होता है जो हमने शुरू किया था। पाकिस्तान के जनरल को डरावने खौफ नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और अरविंद केजरीवाल ने इतवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अवामी मीटिंग की। इन्होंने 2011 में अन्ना तहरीक और पहली बार इलेक्शन जीतने के वाक़े का जिक्र किया। इन्होंने कहा है कि हम पहली बार ईमानदारी की बुनियाद पर इख्तिदार में आए थे। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, मुझे इख्तिदार और कुर्सी का लालच नहीं, मुझे दुख हुआ जब बीजेपी ने मुझ पर करप्ट और चोर कहा। मैं सांस भी नहीं ले सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता इस बदनुमा दाग के साथ। आम आदमी पार्टी कन्वीनर ने संघ के सरबराह मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। इन्होंने कहा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्रा जैसे लीडर्स 75 साल में रिटायर्ड हो गए तो मोदी पर यह उसूल क्यों लागू नहीं होता। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश में एक नई हकीकत सामने आई है। रेलवे राय ने इतवार को बताया कि बुरहानपुर में फौज के जवानों को ले जाने वाली ट्रेन में धमाका करने की कोशिश की गई। ये वाकया 18 सितंबर को पेश आया था। बुरहानपुर के निपानगर में रेलवे ट्रैक पर डिटोनेटर बिछाए गए, ताहम ट्रेन के
ट्रेन तक पहुंचने से पहले ही कुछ डिटोनेटर फट गए, जिसकी वजह से रेलवे हुक्काम को चौकन्ना कर दिया गया और ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में यूपी में ट्रेन की पटरी से उतरने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। इतवार को कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रेमपुरा स्टेशन के करीब JTTN मॉल ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। ट्रेन पर एक छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ मिला, जैसे ही लोको पायलट ने सिलेंडर को देखा, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन को 10 फुट पहले रोक दिया। यह वाक़या इतवार की सुबह पेश आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हफ्ते की रात मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलवे लाइन के दरमियान इंजन की कुल 6 पहिए पटरी से उतर गए। यह वाक़या हफ्ते की रात 8:30 बजे पेश आया। इब्तदाई तफ्तीश में लोको पायलट और पॉइंटमैन की जानिब से गफलत का इंकशाफ हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हिजबुल्लाह का इसराइली हवाई अड्डे पर मिसाइलों से हमला, 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए। ईरान में कोयले की कान में मीथेन गैस के धमाके से कम 28 अफराद हलाक, 17 जख्मी, 24 अफराद लापता। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में सियासी दर्जे हरारत में तेजी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में अमित शाह ने इंतखाबी रैली से कांग्रेस और एनसी को किया चैलेंज। टर्न आउट हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं था, मौजूदा हुकूमत को फिक्र करने की जरूरत। जम्मू कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में वोटरों के टर्न आउट पर उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल। कांग्रेस और एनसी पीडीपी के तीनों खानदानों ने करप्शन से खूबसूरत रियासत को कर दिया था बर्बाद। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने जम्मू के बुरनाई में जलसे आम से किया खिताब। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा, बदनामी के साथ नहीं रह सकता, अगर मैं ईमानदार हूं तो वोट दें। भागवत से पूछा, 75 साल पर मोदी के लिए रिटायरमेंट क्यों नहीं। एमपी में आर्मी ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, डिटोनेटर बिछाए गए। कानपुर में सिलेंडर ट्रैक पर मिला। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।